Viewers, thank you for joining us. The calls for unity by Yogi Adityanath, Prime Minister Modi and Mohan Bhagwat have sparked an intense debate, with the opposition labeling these appeals as downright divisive. These come at a time when Sanatan has faced abuse and slander, and the Tirupati Prasadam controversy has added to the agony of the devotees. Amidst this backdrop, viewers, Bhagwat's call for Hindu unity should be seen as a timely reminder to put aside differences and stand united. But the opposition's reaction reeks of hypocrisy. Here's why. When Samajwadi Party leader Maria Alam made an overtly polarizing vote appeal, there was deafening silence. Yet, when Bhagwat advocates for unity, it's suddenly branded as divisive and dangerous. The opposition must answer for the selective outrage. Their silence on Maria Alam's vote jihad call versus their fervent criticism of Bhagwat's call for unity exposes their double standards completely. Viewers, by spinning a legitimate appeal for unity as divisive, the opposition is indulging in polarizing politics. That is dangerous. Not just that, viewers, the critics are disregarding the current climate of abuse and slander faced by Sanatan, which makes Bhagwat's call for unity even more pertinent. What's wrong in call for unity, and is there a larger message behind this? Let's debate. राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। समाज में सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। ये वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, वैसा व्यवहार होना चाहिए। Self-appointed ठेकेदार्स of Hindu religion, they are in power for the last 10 years, and suddenly Hindus are endangered, are threatened. By whom? तो मोहन भागवत जी को 11 साल के नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या हिंदू सुरक्षित नहीं है, ऐसा लग रहा है? Years of RSS-backed BJP ruled government headed by Mr. Modi. Has this government not given security to the Hindus? They say who are the ठेकेदार्स of Hindus. They are running the government. ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, ना भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। You heard the reactions. Let's open this up. Tuhin Sinha, national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Ratan Sharda, author, political analyst. Tariq Khan, national spokesperson of the Samajwadi Party. Varun Purohit, leader of the Congress. Advocate Adil Hassan, national spokesperson of the AIMIM. Ravi Srivastav, political analyst. वरुण पुरोहित जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। जो ये तीन जो कमेंट्स हैं योगी आदित्यनाथ के, प्रधानमंत्री मोदी के और मोहन भागवत के, इसमें जो कंट्रोवर्सी हो रही है, क्या ऑब्जेक्शनेबल है इसमें? देखिए प्रणेश जी, मोहन भागवत जी के जो है स्टेटमेंट, उन दोनों से अलग कर दो आप। मोहन भागवत जी एक रेस्पेक्टेबल आदमी है, आरएसएस एक रेस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो संघ की रेपुटेशन 10 साल पहले हुआ करती थी, मोदी काल में वो रेपुटेशन नीचे आई है। आम जन के अंदर जो एक रेपुटेशन होती थी वो कम हुई। जो मोदी जी का स्टेटमेंट है वो तो है पूंजीवाद, आपको ध्यान भटका दो और पूंजीवादियों को देश भेजते चले जाओ। हेलो जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं ऑब्जेक्शनेबल क्या है? आवाज चली गई जी। मैं बता रहा हूं ना, पहले इनका एनालिसिस तो कर दें अपन। योगी आदित्यनाथ अपने अस्तित्व का खतरा हो रहा है उनको। इतना देखिए, इतना एनालिसिस का समय नहीं है वरुण जी। आप सीधा सा सवाल है, इतना एनालिसिस आपका अलग है। जी जी बोलिए। मैं अब आ रहा हूं, उस बात पे आ रहा हूं। आपने कहा ना, अब ये कह रहे हैं हिंदू बटेंगे कटेंगे। आप मुझे बताइए, हिंदू किसको किस बात के लिए एक करना चाह रहे हैं? हिंदुओं को तो एक ही है।
जब थाली कटोरे बजाने थे पूरे देश में, जब भी एक थे, नोटबंदी कर दी, लाइनों में लग के अपना धन निकालने के लिए बैंकों में लाइन लगा रहे थे, जब भी सारा हिंदू एक ही था, सारा देश एक हो रहा था। नहीं तो अब बेरोजगारी हो गई तो चाय पकौड़े के ठेले लगाओ, नाले से गैस लगाओ, स्टार्टअप का नाम दे दो, वो भी एक है और वो एक क्या करने की क्या बात कर अलग रहे है हैं। हिंदू, मुझे बताइए वरुण जी, तो फिर दिक्कत क्या है? आप ही कह रहे हैं कि वो एक है और फिर ये भी कह रहे हैं कि किस फिर चीज के किसको लिए एक कर रहे हैं? फिर प्रॉब्लम क्या है? किस बात की बात मैं कह रहा हूं? नहीं तो ये प्रॉब्लम, ये तो पूछ रहा हूं किस बात के लिए करना चाहते हैं, यही तो क्लियर वो करें, मोहन भागवत जी करें, मोदी जी करें। तो इस हिसाब से तो भारत भी जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी भारत जोड़ो में क्यों निकल गए थे? प्रधानमंत्री को भारत जुड़ा हुआ है ना, कि भारत के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो जो यात्रा निकाली थी, तो भारत तो जुड़ा हुआ है। क्यों करी? इंडिया इज नो इंडिया इज यूनाइटेड। क्यों निकाली थी? आप बता दीजिए फिर। इसलिए निकाली थी। इंडिया इज ऑलवेज यूनाइटेड, लेकिन अरे भाई इसलिए निकालिए, जहर फैला रहे हैं समाज के अंदर। किस बात के लिए? एक हिंदू एक हो जाओ, एक हो जाओ। तो मुसलमान क्या हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है? सिख जैन हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है? दूसरे क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी हिंदू एक हो जाओ। 1 मिनट सर, वरुण जी देखिए, यू आर अ सीनियर लीडर सर, 1 मिनट। हिंदू एक हो जाओ से मुसलमानों को कहां खतरा है? यस यस। नहीं, मैं ये कहता हूं किस बात के लिए एक हो जाओ और किसको हिंदू, डेफिनेशन तो क्लियर करें मोहन भागवत जी। हिंदू किस, हिंदुस्तानियों एक हो जाओ, इंडियन से एक हो जाओ, जब तो समझ में आता है। ये कटेंगे बटेंगे, कौन कटेगा बटेगा? ये तो ये क्लैरिटी तो यही करेंगे ना। अच्छा, तो हिंदू एक हो जाओ, इसलिए निकाली गई। जो मोहन भागवत ने बोला है देश में, जो मोहन भागवत ने बोला है कि मैं बता देता हूं, हिंदू सोसाइटी मस्ट यूनाइट, उससे आपको प्रॉब्लम है। रवि श्रीवास्तव, ये जो कमेंट है इसमें क्या ऑब्जेक्शनेबल है सर? प्रणेश, मुझे तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है भागवत जी का स्टेटमेंट। वो कहते हैं कि पहले सिंधु से लेके सिंधु तक सारे हिंदू हैं। अब अगर सारे हिंदू हैं तो फिर एक कौन हो जाओ? आपकी कॉल किसके लिए है? 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक होने के लिए है कि 80% हिंदुओं को एक होने के लिए है? किसके लिए आप एक हो जाओ? किसका आह्वान कर रहे हैं वो? देखो, सच्ची बात यह है प्रणेश, हमें थोड़ा गोल गोल बातें करने के बजाय मुद्दे की बात करनी चाहिए। बीजेपी का वोट शेयर बराबर डिक्लाइन हो रहा है, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो और चाहे उसके बाद के होने वाले इलेक्शन हो। और अभी दो राज्यों के अंदर तो वैसे ही और पार्टियां गुल होने वाला है। तो अब ये पोलराइजेशन का जो पुराना फॉर्मूला है कि वो अब्बा जान, अम्मी जान, शमशान, कब्रिस्तान और जो कहानी थी, अरे बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तभी तो हटेंगे। हमें हटाना ही तो उद्देश्य है। जो यहाँ पर आप काटेंगे। रवि श्रीवास्तव, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, एक मिनट, आई ऑब्जेक्ट टू दिस। हाउ डेयर यू से कटेंगे? कटेंगे मतलब क्या? आप लोगों को मार के ऑपोजिशन से पावर में आना चाहते हैं? मैंने थोड़ी बोला है, अभी आप ही बोल रहे हैं। पूछिए, अरे जिसने बोला उससे पूछिए। आप कह रहे हैं कटेंगे तभी तो हटेंगे। मैं तो यही कह रहा हूं ना, बटेंगे कटेंगे तभी तो नहीं, कटेंगे तो हटेंगे मतलब क्या हुआ? कटेंगे तो हटेंगे मतलब क्या? कि जो कटेंगे तो हटेंगे का मतलब क्या रवि श्रीवास्तव? जो गुंडागर्दी हो रही है, जो बुलडोजर पॉलिटिक्स, एनकाउंटर पॉलिटिक्स, डिमोलिशन पॉलिटिक्स जो हो रही है, उसको तो खत्म ही होना चाहिए ना। नहीं, कटेंगे तो हटेंगे का क्या मतलब है रवि श्रीवास्तव? हटेंगे का मतलब यह है कि बीजेपी हटेगी। और कटेगा कौन? कटेगा क्या? वो तो मोदी वो बताएंगे, आपके योगी आदित्यनाथ वो बोले, मैं थोड़ी बोला हूं। अभी आपने बोला ना कटेंगे तो हटेंगे। अरे भाई, मैं तो उनका स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं प्रणेश राय। उन्होंने तो ये नहीं कहा कटेंगे तो हटेंगे, आपने तो उसमें जोड़ दिया तुहिन सिन्हा। मैंने तो एक लाइन जोड़ी है। हाँ, तो वही मैं उसी लाइन पे पूछ रहा हूँ। आपने जो लाइन जोड़ी है मैं उस पे पूछ रहा हूँ। कटेंगे तो हटेंगे का क्या मतलब है? किसको काटना चाहते हैं आप? सच्चाई ये है। नहीं, किसको काटेंगे वो बताए भाई। मैंने ये बोला आपने तुहिन सिन्हा। पूछिए, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट रवि श्रीवास्तव हैज सेड? कटेंगे तो हटेंगे जी। रविश, नहीं, कटेंगे, जब हम कटेंगे तो बटेंगे की बात करते हैं, केवल हमारी शक्ति कटेगी, हमारी शक्ति कटेगी। देखिए Pranesh, let me come to the larger point. In the last couple of years, there has been vile and preposterous attempts to vilify and denigrate the Hindu Samaj and therefore, divide a section of the Hindu Samaj. And I will give you some brazen examples. Number one, DMK attacks, DMK calls for the eradication of Sanatan Dharma, calls it dengue, malaria and whatnot. Rahul Gandhi encourages it with his conspiracy of silence. Number two,
barely 50 kilometers from Rahul Gandhi's constituency in July 2023, IUML takes out a procession calling for butchering of Hindus outside temples. The entire Congress and the entire opposition, encourages with its conspiracy of silence. Number 3, love jihad, which is now corroborated by multiple court orders. Number 4, the demography war, which you see happening in Jharkhand, which you see happening in parts of Bihar, which you see happening in Bengal from eternity, and the only state which has managed to combat it is Assam. And number 5, Rahul Gandhi, if you remember in May, while his demands for caste census may still be condoned, can you imagine that he tried to divide the army of this country by saying that the Agniveer scheme is brought to stoke caste divisions, and that the people from the higher caste will become officers and those from the lower caste will become Agniveer, after which he was reprimanded by the Election Commission? So this is the truth of this opposition. There is no stone they have left unturned in trying to divide the Hindu society. And in such a situation, the call of respected Mohan Bhagwat ji is very timely, it is commendable, and I think it should be taken in the right spirit. India, with its 80% population of Hindu, yes, the onus for progress of this country lies primarily upon the Hindu Samaj, and for that the Hindu Samaj needs to be sangatit, it needs to be organized. Advocate Adil Hasan, by the way, Tariq Khan has also finally joined the debate, national spokesperson of the Samajwadi Party. But Adil Hasan, what is the problem with the 3 comments? परने साहब, मोहन भागवत जी से पूछिए कि ये किसको डरा रहे हैं, किसको, जो राष्ट्रपति आप ही का, प्रधानमंत्री आप ही का, उपराष्ट्रपति आपका, होम सेक्रेटरी आपका, डीजीपी आपका, चीफ सेक्रेटरी आपका, एसपीडीएम आपका, अरे किसको जोड़ना चाह रहे हैं? मानते हैं कि अभी सरकार ने Z+ से ASL सिक्योरिटी कर दी है, तो मोहन भागवत जी को जान गए कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा हारेंगे, तो तोहफा में कुछ तो हिंदू मुसलमान करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र में जिताने के लिए तो हिंदू मुसलमान करना पड़ेगा। आपसे एक सवाल है, बतलाइए जरा सा, जिस हिंदू की बात कर रहे हैं, तो आरएसएस 100 साल मनाने जा रही है। पिछले साल आज तक कोई दलित, आदिवासी, ट्राइबल वुमेन आज तक संघ संचालक क्यों नहीं बना? किस ओबीसी की आबादी क्या है, ट्राइबल की क्या है, और उसके दलित कम्युनिटी की क्या है, उस पर मोहन भागवत क्यों नहीं कभी बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं मोहन भागवत जी? मणिपुर पे मोदी जी शांत करवा दीजिए, क्यों नहीं बोलते हैं? चाइना घुसपैठ है, महंगाई पर, बेरोजगारी पर मोहन भागवत नहीं बोलते हैं। महाराष्ट्र में, नासिक में 500 से ज्यादा क्रैक है उनके घर के बगल में, रोड में जो NHAI बनाया है उस पर नहीं बोलते हैं मोहन भागवत। मोहन भागवत 18 रेल घट्टे पर नहीं बोलते हैं, उसमें भी तो हिंदू मरता है, मुसलमान मरता है, इंसान मरता है। मोहन भागवत IMPCL को सरकार बेच रही है, उस पर नहीं बोलते हैं। अरे आदिल हसन, मैंने आपसे एक सीधा सा सवाल पूछा, ये जो कमेंट है मोहन भागवत का, योगी आदित्यनाथ का और पीएम मोदी का, उसमें क्या आपको डिविजिव लग रहा है? तो आपने पूछा कि ये पूछिए, वो पूछिए। 1 मिनट आदिल हसन, 1 मिनट। AIMIM के प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट बता दीजिए कौन बने हैं? ओवैसी जी सम्मान नहीं करते महिलाओं का? मैं तो 100 साल नहीं ना मना रहा हूं। नहीं तो क्या 100 साल के बाद बनाएंगे? नहीं तो 100 साल के बाद बनाएंगे? नहीं 100 साल के बाद बनाएंगे आप एक टोकन एक्शन बनाएंगे? नहीं किसी महिला को आप बना दीजिए AIMIM का प्रेसिडेंट। नहीं, क्या एक मुस्लिम महिला आपकी पार्टी की चीफ नहीं हो सकती है? हो सकती है कि नहीं? तो कब बनाइएगा? पहले बना दीजिए, फिर ये सवाल पूछिए। इसका क्या मतलब है? The two are not related, आदिल हसन। You see, that's the problem। ये सुनिए, बीजेपी प्रवक्ता मत बनिए। नहीं, बीजेपी प्रवक्ता है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप एक काम कीजिए आदिल हसन, आपके पास अगर जवाब है तो वो जवाब देके चुप करा दीजिए। जवाब दे रहा हूं। हाँ, दीजिए। लेट मी स्पीक। मैं पूछ रहा हूं, जो आप पूरे हिंदू समाज की बात करते हैं, तो बतलाइए, दलित है, ट्राइबल है, ओबीसी है, महिला, हिंदू जो है, उसको कब सम्मान दीजिएगा? संघ संचालक कब बनाइएगा? और आरएसएस के पास FCRA क्यों नहीं है? हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन है, उसका कोई लेखा जोखा होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास क्यों नहीं है? आरएसएस क्या खुला है? संविधान से ऊपर है क्या? अरे आप तो पता नहीं है आदिल हसन, मैं देखिए एक मिनट, मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं, 2 सवाल पूछ रहा हूं। एक मैंने पूछा तो उस पर आप गुस्सा हो गए। मैंने आपसे पूछा कि महिला प्रेसिडेंट AIMIM में कब मिले? आदिल भाई ऐसे मत कीजिए, जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है कि एंकर गलत सवाल पूछ रहा है तो जवाब देके चुप करा दीजिए। मैं आपसे एक सवाल मैंने आपसे नहीं सुनिए आदिल भाई, सुनना पड़ेगा। देखिए ऐसे मत कीजिए। मैंने आपसे पूछा कि महिला प्रेसिडेंट बनेंगी AIMIM की, आपने बोला नहीं।
अब मैं आपसे दो सवाल पूछ रहा हूं, ये सिंपल सवाल है। कोई पसमंदा मुस्लिम को भी बना दीजिए प्रेसिडेंट। ये टोकनिज्म में जो आप लोग हर डिबेट में जो बोलते हैं ये नहीं है वो नहीं है, पसमंदा मुसलमान को बना दीजिए प्रेसिडेंट। और आपकी पार्टी का मतलब क्या है सर, वो भी बता दीजिए लोगों को, आप बता दीजिए। अब सुन लीजिए, पार्टी का मतलब है ओनली मुस्लिम्स विल यूनाइट, और आपको हिंदू यूनिटी कॉल से प्रॉब्लम है। अरे सुन लीजिए, अरे अब तो सुन तो लीजिए बड़े भाई परने साहब, मेरे हरदिल अजीज। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पासमानदा, झारखंड के अध्यक्ष पासमानदा, बिहार के अध्यक्ष नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल भैया मोदी जी को हटा दीजिए, मेरे बना दीजिए मोदी जी की जगह पर। क्यों उनको दे रहे हैं? 75 साल हो गया। चुनाव जीतिए बन जाइए। अरे भाई चुनाव जीत के बन जाइए, आपको कौन रोक रहा है? आदिल हसन कौन रोक रहा है आपको? नहीं, मोदी जी को कैसे हटाएंगे? जैसे रवि श्रीवास्तव ने बोला कटेंगे तो हटेंगे, आप ये बताइए, रवि श्रीवास्तव ने जो बोला कटेंगे तो हटेंगे, उसको कंडेम करते हैं? ये गलत है कि नहीं? सुनिए, मैं ना काटना जानता हूं, मैं जोड़ना जानता हूं, मैं संविधान को जानता हूं। आरएसएस से पूछना चाहता हूं कि महंगाई पर कब बोलेंगे मोहन भागवत, चाइना के घुसपैठ पे कब बोलेंगे, मणिपुर पे कब बोलेंगे, बेरोजगारी पे कब बोलेंगे, भ्रष्टाचार को, अजीत पवार के भ्रष्टाचार पे कब बोलेंगे, हेमंता बिस्वासा, छगन भुजबल पे कब बोलेंगे, एएसएल सिक्योरिटी क्यों मिलता है उसका तवज्जो, उस पर क्यों बोलेंगे? Ishtaran Bhandari joins the debate. Ishtaran, I'll come to you. Let me quickly bring in Tariq Khan. तारिक भाई, आप तो ऐसी शक्ल बना रहे हैं, एक्सप्रेशन ऐसा दे रहे हैं जैसे ये आदिल हसन आप ही को बोल रहे थे। ये आपके लिए नहीं था, ये बीजेपी और मोहन भागवत के लिए था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि 1946 पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, 1946 पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 354 to page number 358. I am reading out. And these are the word of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. अगर हिंदू राष्ट्र सचमुच में एक वास्तविकता बन जाता है तो इसमें संदेह नहीं कि यह देश के लिए भयानक विपत्ति होगी। आई एम कोटिंग एज इट इज, क्योंकि यह स्वाधीनता, समता, बंधुत्व के लिए खतरा है। इस दृष्टि से ये लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। हिंदू राष्ट्र को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। These are the words of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. Now I don't want to say, now today I don't want to say anything. I'll keep my mouth shut and I'll say these are the words of Baba Saheb Ambedkar, and we all should follow him and do what he said, at least. And these are not my words. These are the words from his own book. No, what you are trying to do means every time Mohan Bhagwat Sahab say, and he himself defend his statement in another way that it's not a Hindu Rashtra. Then he say it's a Hindu Rashtra from more than almost 100 years. They are saying the same things. So we believe in Baba Sahab. And what Baba Sahab said, I stand with that. Okay. Simple. I will tell you what Baba Sahab has also said, and I will put you to test whether you believe in that comment. But let me ask you this: आप 1946-47 में चले गए तारिक भाई, उतने पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आपके अपने नेता हैं, बड़ी नेता हैं वो, उन्होंने वोट जिहाद का नारा दिया था, 2024 में ही दिया था। देखिए ऐसा है ना, यू कैन नॉट कोट अ लीडर। मीन्स आई स्टार्टेड कोटिंग अ लीडर, बीजेपी का लीडर एमपी राहुल गांधी का नाक कान काटने का बात कर रहा है। यू कैन नॉट कोट समबडी। Means if we believe in our ideology, what Akhilesh ji said or the official spokesperson said is the stand of the party. No, we stand with Baba Saheb. That may be the stand of the party, Tariq bhai, but no action was taken against. We condemned all those things. There is nothing like vote jihad and all those things. The moment she said we all condemn all these types of things. We don't believe in any type of words which create partition amongst religion, amongst communities. We believe in spreading love. We believe in spreading words of Baba Saheb. What he there you said, go. We should you stop believe all these in things you believe in spreading love and unity. योगी जी तो वही बोल रहे हैं, एक साथ रहो। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला एक साथ रहो, वो तो वही फिलॉसफी है। तो आप उसको एंडोर्स कर दीजिए। बात समझ में नहीं,
इन लोगों की बात समझ में नहीं आती है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि भारत जोड़ेंगे तो ये कहते हैं कभी बटा ही नहीं था, अब कहते हैं आओ सब लोग बटे हो मिल जाओ ना। दे आर जस्ट कॉन्ट्रडिक्टिंग, ईटिंग देयर ओन वर्ड्स, व्हाट दे वांट टू से, whether they are united or not united or नहीं they divided. whether or not they are united or not, how is the call divisive? ये जो बोला है वो गलत कहाँ है? कुछ लोग बोल रहे हैं तो एंटी मुस्लिम है, रवि श्रीवास्तव और वरुण पुरोहित बोल रहे हैं कि ये तो देखिए मुसलमानों के लिए खतरा है, गलत है, ये है वो है। कैसे बताइए? मैं तो ये बोल रहा हूं, नहीं 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 प्रणेश जी, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किससे डर है? जो भारत को कह रहे हैं कि साहब यूनाइट हो जाओ, कि पाकिस्तान से डर रहे हो, चाइना से डर रहे हो? नहीं तो यूनाइट हो जाने में क्या दिक्कत है? वरुण पुरोहित, ईस्टर्न, why is the opposition so rattled by this call for unity? Pranesh, because Dr. Baba Saheb Rai Ambedkar's name was taken, a great man, and some lines of his were allegedly quoted. Let me quote his views on Islam, the spokesperson from Samajwadi Party. Let us see what he says on these words. Ambedkar in his writing, Hinduism is said to divide people, and in contrast, Islam is said to bind people together. That is only half for Islam to divide as it binds. Islam is a close corporation, and the distinction that it makes between Muslims and non-Muslims is very real, very positive, very alienating distinction. The brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is the brotherhood of Muslims for Muslims only. There is a fraternity, but the benefit is confined to those within the corporation. For those who are outside the corporation, there is nothing but contempt and enmity, etc., etc., etc. Yeah, Ishtaran, we have a bad connection with you. We'll try and fix it. Our team is on it. It can happen sometimes, viewer. We'll try and fix this so that this glitch is not an inconvenience to this experience of watching a debate. Adil Hassan, बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ, इशिकरण से पूछिए, संविधान पे बात करें ना भाई। बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं, क्यों बाबा साहेब अम्बेडकर? अभी तारिक खान उनको कोट कर रहे थे। पे बात कीजिए ना। नहीं, मैं भी कोट करना, मैं भी, क्यों प्रॉब्लम है? अगर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है? संविधान पे बात कीजिए ना। तो संविधान, भाई बाबा साहेब लेफ्ट हिंदुइज्म, व्हाई ही एम्बैरेस बुद्धिज्म देन? Why he left Hinduism then? नहीं, एक मिनट, that was his choice. 1 minute, sir. मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, क्यों बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था? नहीं, क्यों आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं, इशिकरण क्यों इस्लामिक स्कॉलर बन रहे? संविधान इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, ही इज कोटिंग व्हाट अम्बेडकर सेड। तारिक, एक मिनट, नहीं, आदिल हसन, मैं बता रहा हूं, देखिए, जब तारिक खान बोल रहे थे व्हेन ही वाज कोटिंग अम्बेडकर, तब आपको प्रॉब्लम नहीं था। नहीं, तभी आपको प्रॉब्लम नहीं था, तभी आपने उनको बोला। अभी तभी आपने उनको नहीं बोला ना, आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको ये जो पर्टिकुलर कोट है और ये जो ऑब्वियसली इस रिमार्क से आपको प्रॉब्लम है। अब आप क्या बोलेंगे? यू कांट क्रिटिसाइज अम्बेडकर, और आई डोंट नो विल यू। मैं हिंदू नहीं मरूंगा, बाबा साहब टोल मैं हिंदू हूं, हिंदू नहीं मरूंगा। उसके पीछे मैं जाना चाहूं क्या? उसका हिस्ट्री खोलूं क्या? इस तरह बोलिए, बाबा साहब ने क्या कहा था? हाँ, खोलिए। आपको किसी ने रोका? आप खोलिए, आप खोल सकते हैं, खोलिए। जस्टिस पे बात कीजिए, आप गूगल कीजिए। आरएसएस चाइना पर कब बोलेगा? आप कब बोलेगा? आरएसएस मणिपुर पे बोल चुका है, आरएसएस मणिपुर पे बोल चुका है। आदिल हसन, ये जो लिस्ट आप लेके आते हैं उसमें टिक मार्क भी कर लीजिए कि कौन से टॉपिक अब हो गए हैं। ऐसे मत कीजिए इस तरह। Pranesh, can you hear me out? Pranesh, if you will lower this feeder now, because anyways the connection is broken, you please the audiences can Google Dr. B.R. Ambedkar's views on Islam. That is why they were jumping like popcorns who have been put on a burner, because while they want to quote Dr. Ambedkar, they want to not address his views on Islam. These are documented facts. Now coming to the case, please understand what is the destiny of Bharat. Before the Britishers left, there was this land of Bharat. It got divided. And what happened immediately after the division? Pakistan became an Islamic republic. Bangladesh, the state religion is officially Islam. It is only because of Sanatan Dharam that Bharat is a secular country. And if it is a secular country because of certain reasons, those reasons should be said. Because they say culturally we are the same with Pakistan. Culturally we are the same with Bangladesh. Then Pakistan an officially Islamic republic, Bangladesh an officially Islamic republic, and Bharat a secular republic, because the majority here wanted it to be secular.
gets blamed for divisive politics, whereas that is the truth. It is only in democracy the majority which decides what will be the nature of the religion of the state. Will it be a religious state or will it be a secular state? Pakistan decided to be an Islamic state. Bangladesh decided to be an Islamic state. It is Bharat which in its constitution, actually originally, one more point, Dr. Ambedkar rejected that you put secular in the preamble. It is only later for politics that the word secular also came in the preamble. So when Dr. Ambedkar's views are clear, where what was the landmass of Bharat divided by British, then what? No, what you are saying is obviously this is officially documented. There are no two ways about it. But let's talk about constitution. Adil Hasan wants us to talk about constitution. Adil Hasan, let's talk about constitution. अब आप बताइए संविधान पे. अब आप देखिए इधर उधर मत कीजिएगा आदिल भाई. बोलिए सर, बोलिए. संविधान पे, संविधान में यूसीसी का प्रावधान है. AIMIM बैक करती है यूसीसी को. सर यूसीसी में आर्टिकल ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा गया है. संविधान है कि नहीं? नहीं संविधान. अब आपने पहले बोला अंबेडकर पे मत बोलिए, संविधान पे बोलिए. अब आप बोलिए नहीं आर्टिकल नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है. फिर आप बोलेंगे कि देखिए ये 200 पेज के बाद है, इसका फॉर्म ठीक नहीं है. अरे आदिल भाई ऐसे तो मत भागिए. अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल पूछ रहा हूं तो अब आप देखिए दिक्कत. Let me speak. No, I'm asking you to take a position. Directive principles में clear है UCC. बोलिए. Let me speak. मेरा कहना है बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि संविधान में इसलिए उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे डाला ताकि सब लोगों से कंसल्टेशन हो सके. नरेंद्र मोदी की तरह कोई फतवा नहीं जारी हो. अच्छा चलिए. आदिल हसन देखिए एक तो एक्सपोज हो गए आप संविधान पे सवाल पे. नहीं संविधान के मैं बताता हूँ एक्सपोज कैसे हुए. सुनिए, अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं आपको बताता हूँ एक्सपोज कैसे हुए. जब हम अंबेडकर की बात कर रहे थे आपने बोला संविधान की बात कीजिए. संविधान पे सवाल पूछा तो आप वापस अंबेडकर पे चले गए. अब मैं आपको अंबेडकर पे पूछता हूं. अभी आपने फिर अंबेडकर की बात की तो मैं पूछता हूं. तो अगर अंबेडकर जी को यह पता था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डालना चाहिए तो उनको इतना तो ज्ञान होगा ना कि जो उन्होंने जो कॉमेंट जो भी स्टरन पढ़ रहे थे वो भी सही है. उन्होंने क्यों कहा था कि मैं हिंदू? आप ये बताइए, इस कमेंट का जवाब दीजिए. अब आप देखिए, अब आप अंबेडकर और संविधान में फंस गए हैं. अब आपको पता नहीं अब यहां जाना है कि वहां जाना है. यही प्रॉब्लम है. तारिक खान यूसीसी तो संविधान में है. तारिक भाई यूसीसी संविधान में है. लोहिया जी यूसीसी को मानते थे, बाकी छोड़ दीजिए. उतने पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है. Before saying anything on UCC, we all should respect all the religion. Now, when you talk about what he said about Islam, then we start talking about 22 pratigya, 22 pratigya, 22 promises, and what is written there, that is a disrespect for Sanatan. This is the difference of ideology of BJP and Samajwadi Party and India Alliance. We respect religion. We don't want to talk things with disrespect religion. Tariq Khan, and continuously, Tariq Khan, it is. I will tell you, sir, it is too rich for the Samajwadi Party to even be talking about Sanatan. Akhilesh Yadav compares mafia with Mathadish. वो बोल रहे हैं माफिया और मठाधीश एक ही है. और अब आप बोल रहे हैं दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट टू सनातन. अब मैं बोल रहा हूं आपके एक्सप्रेशन बदल रहे हैं. देखिए अब आप ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है. Disrespect would be this, that when I read out those 22 pratigya over here, that would be disrespect. No, you read out what Akhilesh Yadav said about mafia and Mathadish. How is that respectful to Sanatan? So let's not mislead the viewer. Sir, ये सब तो बोली बातें. आपने कहा कि देखिए मरियम को छोड़ दीजिए. अखिलेश यादव को कैसे छोड़ दें? वो तो पार्टी सुप्रीमो है. कि उनके ऊपर भी कोई है नहीं है ना तारिक भाई? नहीं सुनिए, let me say what he said is specifically for Yogi Adityanath. He have many criminal cases against him. So whatever he is saying, he's saying to Yogi Adityanath. Why? Because you have criminal cases. Tell me how many criminal cases are there on Akhilesh ji? 0. And you have 10, 12 criminal cases. You yourself revoked all those cases. Okay, you have means all those things. And which type of cases means 1 minute, sir, 1 minute. Is Rahul Gandhi on bail? Is Rahul Gandhi out on bail? Tell him whatever you want to say. बताइए तारिक भाई, is Rahul Gandhi out on bail? Yes, tell him. Is he a mafia? Whatever you want to say. Is he a mafia? Is Rahul Gandhi a mafia? If BJP want to say, is Rahul Gandhi a mafia?
अभी जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पे केसेस हैं इसीलिए उनको माफिया बोल दिया। राहुल गांधी माफिया है, बीजेपी, राहुल गांधी माफिया है। तारिक भाई देखिए एक्सप्रेशन बदल रहे हैं आपके, लगातार बदल रहे हैं। No, you answer the question. 5 सेकंड। राहुल गांधी माफिया है। बीजेपी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड राहुल गांधी नंबर 1 टेररिस्ट ऑफ इंडिया ऑफ वर्ल्ड। Answer my question. By your logic, someone who's facing criminal cases is a mafia. Is that correct? Is Rahul Gandhi a mafia? Are you in alliance with the mafia? कह दीजिए, जब आप उनको टेररिस्ट कह रहे हैं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या है? अरे ये तो आपका एग्जाम्पल है सर, ये तो अभी आपने बोला योगी आदित्यनाथ इज फेसिंग केसेस, सो इट इज ओके टू कॉल हिम, कंपेयर हिम टू अ माफिया। इस्टरन, That is factually wrong. Pranesh, one fact check can I make? Yes. Can I make a fact check? I just opened the election affidavit of Yogi Adityanath. There are 0 criminal cases. So I do not know why Samajwadi Party leader is saying that. There are 0 cases in his election affidavit. To say he's facing criminal cases is an outright lie being spoken on the national television. बताइए। Desh, who are listening to you, they laugh on you कि what you're saying, है ना, हंसेंगे लोग। जो उत्तर प्रदेश के हैं जानते हैं, वो लोग हंसेंगे कि क्या नहीं, अगर इलेक्शन एफिडेविट में नहीं है तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि 2017 से पहले योगी साहब के पास ऊपर बहुत से क्रिमिनल के केसेस थे। हत्या का प्रयास, दंगा करना, कब्रिस्तान की जमीन गिराना, 153 जब रो रहे थे वहां जाकर, वही सब मामले हैं। पार्लियामेंट में रो रहे थे। नहीं तो अब अगर उन्होंने इलेक्शन एफिडेविट में नहीं है तो अब मामले बंद हो गए होंगे, खत्म करवा दिए खुद से। तो मतलब जुडिशरी पे भी भरोसा नहीं है आपका, बंद हो गए मामले। क्लोजर रिपोर्ट पुलिस लगाती है, जुडिशरी नहीं लगाती है, तो बंद हो गए। पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर में। तारिक खान, एक बात बताइए मुझे। होम मिनिस्टर बिल्कुल होम मिनिस्ट्री है, मैं बता रहा, अभी सवाल तो सुनिए, देखिए एक्सप्रेशन आपका बदलेगा। योगी जी से पहले मुख्यमंत्री कौन था? हंसता हुआ चेहरा देखिए। नहीं, हंसता हुआ चेहरा तो है। अब देखिए, अब ये सवाल देखिए, योगी जी से पहले मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश जी। तो क्या होम मिनिस्ट्री उनके साथ नहीं थी? जेल कर देते योगी आदित्यनाथ को? गए थे जेल 14-15 दिन के लिए, तभी तो रोने लगे। 14-15 दिन नहीं तो छोड़ दिया फिर, क्योंकि वो रोने लगे तो छोड़ दिया आप लोगों ने। हाँ, वो सोमनाथ चटर्जी साहब ने थोड़ा ऊपर से सोर्स वगैरह लगाया। अच्छा, तो आपकी जब सरकार थी तो ऊपर से सिफारिश पे न्याय होता था। देखिए क्या क्या बोल रहे हैं आप। आपके एक प्रवक्ता एक चैनल में गए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो आपको उठा लेंगे। अब आप बोल रहे हैं ऊपर से सिफारिश आई थी तो हमने छोड़ दिया। देखिए दिस इज द गवर्नेंस रिकॉर्ड ऑफ समाजवादी पार्टी। प्रदेश में बहुत समय से नहीं प्रदेश अभी मैं बहुत समय से बहुत पेशेंस से दोनों का बकवास सुन रहा हूं, इसलिए प्लीज अलाउ मी सम टाइम टू कन्फ्रंट देम। समाजवादी पार्टी योगी जी पर कमेंट कर रही है, ये वो पार्टी है जिसके 2 सिटिंग एमपी। Let's not get personal. No, you make your point. No. If they use this language for Yogi ji, if they keep recalling an instance when he was terrorized by SP goons and that is the reason he wept, if they keep referring to these instances, I'm afraid, my civility cannot be eternal. ये आपको पता है कब उनके आंखों में आंसू आई थी? जब वो रेफर कर रहे थे एसपी के गूंस ने किस तरह से दहशत मचाकर उनका जीना हराम किया था। और ये जो है एसपी के प्रवक्ता बार बार उसको रेफर करते हैं, मजाक उड़ाते हैं आपके शो पर उसका। मैं आपको एसपी की सच्चाई बताता हूं। 2 इनके एमपी हैं, टीए हसन लास्ट टाइम एमपी थे, एमपी रहते हुए शरिया की वकालत करते थे। बशीर उल हक जिनका निधन हुआ 1 साल पहले, जब तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान का, खुलकर स्वागत किया था। अब मैं आता हूं एआईएमआईएम पर। एआईएमआईएम वो पार्टी है, इनके जो नेता है असदुद्दीन ओवैसी, जब ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने थे यूके के, उनका बयान है कि द टाइम हैज कम फॉर इंडिया टू हैव अ हिजाब वेयरिंग प्राइम मिनिस्टर। शर्म नहीं आती इनको? 2 साल बीत गए, अपनी पार्टी में कितने पद बांटे हैं इन्होंने हिजाब वेयरिंग विमेन को? बड़ी बड़ी बातें करते हैं सिर्फ। ये एआईएमआईएम के प्रवक्ता आपके शो पर कह रहे थे कि बीआर अंबेडकर ने तो त्याग दिया हिंदुइज्म, ज्वाइन कर लिए बुद्धिज्म। उनको पता है बीआर अंबेडकर की हिस्ट्री। 20 साल उन्होंने अध्ययन किया कि कौन से रिलीजन ज्वाइन करना है। बुद्धिज्म और इस्लाम के बीच चॉइस था और अंत में उन्होंने बुद्धिज्म को चुना। इनको पता नहीं और कुछ भी बोलते रहते बीआर अंबेडकर के बारे में, कुछ भी बोलते रहते योगी जी के बारे में एसपी के प्रवक्ता।
I think there should be some limit to the gibberish that they peddle on national television. Adil Hasan is objecting. प्रणय, इतना ज्यादा इनका भी बकवास हम लोग बहुत देर से सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं। अगर इनको बात अच्छी नहीं लगती है तो बोलिए, डिबेट में नहीं आए। योगी आदित्यनाथ संविधान से ऊपर नहीं है। हम पार्लियामेंट में नहीं रोते हैं, पार्लियामेंट में हम फेस करते हैं और बनेगी महिला हिजाब वाली दिक्कत क्या? अगर भारत चुनेगा तो बनेगी। हम थोड़ी नीतीश और नायडू और चिराग पासवान के बैसाखी की सरकार है। वही नीतीश कुमार ने कहा था आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, और जाकर उसी के गोद में आप बैठ गए हैं। है हिम्मत नीतीश कुमार पर बोलने की? हाँ, चाइना पर है बोलने की आरएसएस प्रमुख को? बलात्कारी सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा को कौन पैरोल देता है हिम्मत बोलने की आरएसएस को? क्या सवाल था? कहां चले गए आप आदिल हसन? बोलिए। संविधान अंबेडकर से हम कहां चले गए? क्यों? संविधान पे अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? पूछिए। मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू नहीं मरूंगा। है हिम्मत इनको बोलने की इस पर? इस्लाम को क्यों लाते हैं बीच में? नहीं, इस्लाम पे भी तो जो उन्होंने बोला, नहीं, ये इस्लाम और हिंदू की बात नहीं है आदिल हसन। आपने बोला संविधान की बात कीजिए, अब संविधान पे बोला तो फिर आप अंबेडकर के पे चले गए। ये तो जो देखिए, अगर अंबेडकर जी ने कुछ लिखा है तो वो पूरा पढ़ेंगे कि सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ेंगे? पूरा पढ़ेंगे, हम ही तो पढ़ते हैं। हाँ तो पढ़िए, तो क्या दिक्कत है? तो अंबेडकर जी पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं आप पढ़ के, पूरा पढ़िए, मिसलीड मत कीजिए। सुनिए, मेरे लीडर ने जय भीम और जय मीम का नारा, आपके लीडर ने, आपके एक लीडर है उनका नाम, आपके एक लीडर है उनका नाम आपको पता है उन्होंने क्या कहा था? पता है क्या कहा? उन्होंने ऐसी संवैधानिक बात कही थी कि चौराहे पे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। संविधान में लिखा हुआ है। क्या? इम्तियाज जलील ने कहा था। इम्तियाज जलील आपके नेता है। इस तरह जो बोलते हैं गिरिराज सिंह, नहीं तो इसीलिए बोलेंगे तो फिर आप संविधान का फॉलो कर रहे हैं, तो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। तो आदिल हसन, तो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं संविधान, और आपने कहा कि हिजाब में महिला है तो क्या प्रॉब्लम है? तो फिर कहा है भाई, तो पर्सनल नहीं तो फिर यही है। दिस इज योर ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स। नो, माय पॉलिटिक्स इज नॉट डिसाइसिव। ये बीजेपी की तरह नहीं है, दोगला नीति है। इस तरह राम रहीम को पेरोल क्यों दिया? वोट के लिए क्या? जस्ट वन पॉइंट प्रणेश, वन पॉइंट। थैंक यू प्रणेश। A simple question, because we are talking about constitution. The audiences have seen how they keep changing the goalpost. They don't want to talk about Dr. Ambedkar, then they don't want to talk about constitution. Let's ask just one question. Constitution does not allow anybody to kill anybody. तो जो भी सड़क पे सर तन से बोलता है वो टेररिस्ट है या नहीं है, इसका जवाब दे दीजिए आप। सर तन से जुदा आपके यहां से आया, मुझे तो पता ही नहीं कि कहां से आया आपके सर तन से, जो हमने नहीं कहा था वो संविधान के तहत फांसी की था, वो संविधान के तहत फांसी की। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने सड़क पे बोला था, चौराहे पे फांसी दे देनी चाहिए। आदिल हसन, चौराहे पे फांसी दे देनी चाहिए, ये कहा था उन्होंने, ये कहा था। इस तरह जो आपको सवाल पूछ रहे हैं आप उसका जवाब देंगे। नीलेश राणे पर महाराष्ट्र सरकार क्या करी है? तुहिन सिन्हा से पूछिए। रामगिरी में मैं कंडेम कर रहा हूं, मैं कंडेम कर रहा हूं नीलेश राणे। चलिए मैं एक्शन लीजिए, कंडेम से आपके। अरे मैं एक्शन, मैं सरकार थोड़ी हूं सर, मैं थोड़ी हूं सरकार। बीजेपी ऑफिशियल। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग महाराष्ट्र में एमबीए अलायंस में जाना चाहते हैं? हम लोग बीजेपी को हराने के लिए किसी भी अलायंस में जाएंगे। अच्छा, इस अलायंस में वो पार्टी है जिसने कहा है कि हमने पैर से धक्का मार के बाबरी मस्जिद तोड़ दी। सुनिए, अगर इस इतिहास पे जाएंगे तो वल्लभ भाई पंत से बाबरी मस्जिद की शुरुआत हुई है। नहीं तो फिर आप क्यों जा रहे हैं भाई उस पार्टी में? आदिल हसन, कुछ तो लिहाज रखिए। महाराष्ट्र के विकास के लिए, बट क्यों महाराष्ट्र के विकास के लिए आप जा रहे हैं? छत्रपति की धरती को बचाने के तो लिए। एक बात बताइए, तो जो पार्टी ये कह रही है, तो एक पार्टी अगर ये कह रही है हमने बाबरी को तोड़ा, वो उसके साथ आप हाथ मिला के विकास करेंगे? सुनिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। कोई हम शिवसेना के साथ अलायंस नहीं करें, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में। अरे आदिल हसन, देखिए सत्ता का जो सुख है ना, सत्ता का सुख पाने के लिए आप लोगों ने सब कुछ दांव पे लगा दिया है। वैसे तो आप कम्युनल, कौन कम्युनल है कौन सेक्युलर है ये सर्टिफिकेट डेली देते हैं, लेकिन यहाँ पे हाथ मिलाने के लिए तैयार है। अगर आप में है हिम्मत तो बाहर रहिए और बोलिए जो बोला था शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन ने वो गलत था, लेकिन आप नहीं बोलेंगे। दिस एक्सपोजेस यू। तारिक भाई इज एक्सैस्परेटिंग। यस तारिक भाई। देखिए, अगर हम लोगों ने बकवास की तो उस बकवास को ऑर्गेनाइज कराने वाले टाइम्स नाउ और प्रणेश राय ये क्या हुए?
अगर हम लोगों ने बकवास अरे की उस पे हो तो गया, इसको आगे भी बढ़ गए। डिफाइन तारिक करें। भाई बोल दिया मैंने तो अरे इनसे थोड़ा ना सा एक लाइन बोला मैंने, एक लाइन सिर्फ बोला। अरे इसको इसमें भी एंकर को मत बताएं। घसीटिए ना, आप लोग आपस में लड़िए। अरे भाई, अरे सबको बोला ना उन्होंने, आप ही ने तो मुझको बुलाया है, तो मैं बकवास कर रहा हूं, तो आप भी कुछ ना कुछ होंगे अरे ना तो मैंने बकवास तो के बोल ही साथ वाले। दिया, मैंने बोल दिया, हो गया। हाँ, अब आपने आगे बोला, चलिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए, अब मैं ये कह रहा हूं, नहीं, अब आगे बढ़ते। जुदा कहने वाले आतंकवादी, सरतन से जुदा कहने वाले आतंकवादी, और राहुल गांधी के इनके सांसद नाक काटने वाले वो संत हैं। तो वो इनसे भी आंसर दैट आतंकवादी हैं। क्वेश्चन, आंसर दैट क्वेश्चन। मैं खुद अगले दिन सबसे पहले मैंने निंदा की थी कि ये हमारा ऑफिशियल लाइन नहीं है, ये हमारा ऑफिशियल लाइन नहीं है, और हमने कंडेम किया था। देखिए, मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था प्रणेश जी, जिसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला, कि जो व्यक्ति कहता है कि ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद यूके में इंडिया शुड हैव इट्स ओन हिजाब वेयरिंग प्राइम मिनिस्टर, वो व्यक्ति अभी तक कितने पद बांटा है अपनी पार्टी में हिजाब वेयरिंग विमेन के लिए? ये जब मेरा छोटा सा सवाल था, अब तक इसका जवाब नहीं मिल पाया। आदिल हसन बोलेंगे कि हम बाद में बनाएंगे, आप इस स्टेट में देखिए, उस स्टेट में देखिए, राष्ट्रीय लेवल पे बाद में बनाएंगे। आदिल भाई भी बनेंगे। आदिल भाई अपना सीट किसी और को क्यों दे दे? चल, नहीं कहा देंगे आदिल भाई, आप तो बोलने नहीं देते, आप आदिल भाई बोलने का मौका नहीं दे रहे, आप कहा देंगे पद किसी को? चलिए, लेट्स मूव ऑन।